Assalamualaikum, dear students. How are you? Hope you all are fine. Dear students, today our topic is Cripps Mission 1942. This is the time when British government sent a mission to the subcontinent. This is in 1942. Why they sent this mission? To solve the problems in India. You know, this was the time when Muslims and when in the subcontinent, Muslims and Indians were trying first to get rid of English people, अंग्रेजों से छुटकारा पाना एक उनका मकसद था, and secondly, Muslims wanted to get a separate homeland. So ये सिचुएशन ऐसी थी कि अफरा तफरी मची हुई थी बड़े सगीर में. That's why British government sent a mission to solve this situation, this problem. Cripps mission arrived in India in 1942 and the group head was Stephen Cripps. यानी उनका जो लीडर था वो सर स्टीफन क्रिप्स था. मकसद क्या था इस मिशन का? Scope of mission was it tried to unite all the political parties on some points. What were the points we will see later today, but it failed in its attempt. यानी इनका मकसद ये था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को किसी एक राय पर, एक पॉइंट पर यूनाइट कर दिया जाए, मुत्तफिक कर लिया जाए, मगर वो कामयाब नहीं हुआ. अब वो कौन से पॉइंट्स थे जिन पर अंग्रेज चाहते थे कि मुसलमान और हिंदू मुत्तफिक हो जाएं, यूनाइटेड हो जाएं? We will discuss those points and those are named as Cripps proposals. यानी क्रिप्स मिशन की तजावीज़ हम देखेंगे. Cripps announced his proposal on 29th March 1942. I think, dear students, you should be careful and alert when I tell some date or the place. As I'm telling, mission came in 1942. His proposals were announced on 29th March 42. Which proposals? Number one, the subcontinent will be given the status of a domain after the war. यानी उन्होंने कहा कि जंग के बाद ये जो बड़ी सगीर का इलाका है इसको डोमेन मीन एक ऐसा इलाका जो बज़ाहिरन तो इनका हेड होगा इंग्लिश गवर्नमेंट, इंग्लैंड इनको हेड करेगा, लेकिन इंटरनली इनके अपने जो मामलात होंगे, अफेयर्स होंगे, उनमें ये इंडिपेंडेंट होगा. मींस ब्रिटिश गवर्नमेंट उनमें किसी किस्म की इंटरफेरेंस इनके मामलात में नहीं करेगी. सच टाइप ऑफ डोमेन. All government departments will be handed over to the Indian ministers, including defense, foreign affairs and communication. Second point है इसका, यानी उन्होंने जैसा कि मैंने कहा कि ओवरऑल यूँ समझे एक फॉर्मेलिटी होती है डोमेन में कि इसका लीडर या ये हुक्मरानी किसकी है. एक ताजे बरतानिया जिसको कहते हैं, यानी अंग्रेज़ों की हुक्मरानी के अंडर होंगे, बट इंटरनली वो इंडिपेंडेंट होंगे. अपने मामलात इंडियन मिनिस्टर्स मीन इंडिया के बरसगीर के रहने वाले लोग अपने मामलात को खुद लुक आफ्टर करेंगे. उसमें डिफेंस का शोबा है, कम्युनिकेशन है, फॉरेन अफेयर्स वगैरह. तो डिपार्टमेंट्स, इन तमाम डिपार्टमेंट्स को लुक आफ्टर करना, इनके मामलात को देखना, यहाँ के लोग खुद देखेंगे, यानी अपने मामलात को, अपने मसाइल को खुद लुक आफ्टर करेंगे. Similarly, third point was
a central constituent assembly will be formed. Why assembly is formed? To constitute, to formulate a constitution, यानी आइन को बनाने के लिए एक आइनसाज असेंबली बनाई जाएगी. अब वो असेंबली कौन बनाएगा? द कंस्टिट्यूएंट असेंबली विल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज. यानी जो सूबाई असेंबलियां होंगी वो उनके मेंबर सेंट्रल असेंबली के मेंबर्स को चुनेगी, बिल्कुल वैसे जैसे इलेक्शन होते हैं और अवाम अपने नुमाइंदे वोट के जरिए चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं. The last point was the right of the minorities. Special steps will be taken to provide safeguard to the minorities. यानी minorities यानी अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खास इक़दामात उठाए जाएंगे. These were the proposals of Cripps mission, right? अच्छा, अब हम देखेंगे ये कि what happened later, what was the reaction of the different political parties, right? अब कौन सी political parties हैं? You know, at that time Muslim League and Congress, these were two main parties. So Muslim League's reaction was that they expressed its satisfaction with reference to the protection of rights of the minorities. After the long deliberation, Quaid-e-Azam and All India Muslim League refused to accept the proposals made by Cripps on the grounds that demand for Pakistan was not instantaneously accepted in clear words. अच्छा, इसमें एक पॉइंट मैं मजीद ऐड कर दूं. When the point was about constituent assembly, it was told that when the constitution was made, it will be sent to the provinces and they will give their opinion about this constitution, whether they accept the constitution or reject. In the Cripps mission, they asked that if any province doesn't accept this constitution, he will have the it is his own opinion कि अगर वो चाहे तो उसको reject कर सकता है. And in this case, they will be free to be separate from the constitution, from the central government. यानी उन्होंने कहा कि जो सूबे आइन को पसंद ना करे वो उनको ये इख्तियार दिया गया कि वो चाहे तो इसको रिजेक्ट करके सेपरेट हो जाए मरकज से और आज़ाद हैसियत से अपनी हुकूमत कायम करें. This was the major point which Muslims didn't accept, in the way that in their opinion in this constitution the Pakistan demand was not clearly accepted in clear words. This was the point of view of Muslim League. यानी मुस्लिम लीग ने जब इस आइन को रिजेक्ट किया तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि पाकिस्तान बनाने का जो उनकी डिमांड है मुसलमानों की, उसको वाज़े तौर पर बयान नहीं किया गया. सिर्फ आप यूँ समझें कि एम्बिग्विटी थी इस बात में, क्लियर वर्ड्स नहीं थे. जब उन्होंने कहा कि अगर कोई सूबा आइन को पसंद ना करे तो वो इजी हो जाए, फ्री हो के अपनी इंडिपेंडेंट रियासत कायम कर ले. तो ये एक
ऑप्शन दिया गया था उन्हें, अदरवाइज पाकिस्तान का लफ्ज या एक अलहदा होमलैंड की बात नहीं की गई थी। तो मुस्लिम लीग का ये कहना था कि चूंकि उनके पाकिस्तान के मुतालबे की बात को वाज़ेह अल्फाज में नहीं कहा गया, इसलिए उन्होंने इन प्रपोजल्स को एक्सेप्ट नहीं किया। ऑन द अदर हैंड, सी इट इज़ वेरी interesting that Congress and his political party, All India National Gandhi and his party, All India National Congress, also rejected the proposals. अब ये तो बड़ी मजे की बात है कि मुस्लिम लीग वाले इसलिए उसको रिजेक्ट करें कि इसमें पाकिस्तान की डिमांड नहीं है। तो बज़ाहिर ऐसे नजर आता है कि कांग्रेस तो ये एक्सेप्ट कर लेती, मगर ऐसा नहीं हुआ। दे ऑल्सो डिसएग्री, दे रिजेक्टेड द प्रपोजल। व्हाई? They disproved the authority given to the provinces to reject the constitution. Means Congress was not convinced to accept any ambiguous or unambiguous proposals regarding the partition. यानी कांग्रेस वाले किसी तरह भी इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे कि अगर ये सूबे कब कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट ना करे और वो उसको नो करके अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत कायम कर लें। प्रपोजल यही था ना क्रिप्स मिशन का। तो उन्होंने कहा इस तरह अगर इनको ये ऑप्शन दे दिया गया तो फिर तो मुसलमान अलहदा होकर एक अलहदा वतन बना लेंगे, लिहाजा उन्हें ऐसी कोई प्रपोजल एक्सेप्टेबल नहीं है जिसमें किसी भी तरह की पार्टीशन का हवाला मौजूद हो। सो व्हाट वाज द एंड? फेलियर ऑफ द मिशन। Cripps didn't declare any responsible for the failure of the mission. Rather, he accepted himself for the failure. यानी उनकी proposals reject हो गई, Cripps mission नाकाम हो गया और उन्होंने पूरी responsibility स्टीफन क्रिप्स ने कहा। उसने ये नहीं कहा कि कांग्रेस की वजह से नाकाम हुआ है या मुस्लिम लीग, नो, ही सेड कि नहीं जी हमारी ही वजह से हम शायद प्रॉपर इसको चला नहीं सके या मनवा नहीं सके। So what was the conclusion? British government under American pressure prepared the Cripps proposal. Government was not willing to agree the demand of Indian National Congress. On the other hand, Congress could not support the proposal. The effort proved futile, but from the Muslim point of view, it was a step towards the partition. So now we will come to the next topic. This is Jinnah Gandhi Talks, 1944. In MCQs, ये 1944 में जिन्ना गांधी टॉक्स का जिक्र आता है, MCQs में भी आ जाता है। In this, Gandhi wrote a letter to Quaid-e-Azam in July 1944. He said, very interesting it is. My heart was asking me to write a letter to you. I can meet you and you wish. Don't think me the enemy of Islam or the Muslim. I'm not only the friend and servant of you, but of the whole world. Don't disappear me. बड़ी खूबसूरत अल्फाज में गांधी कह रहे हैं कायद-ए-आज़म को खत में कि जी आज मेरा दिल कह रहा है कि आपको खत लिखूं, आप जब चाहें मेरी और आपकी मुलाकात हो सकती है। गांधी कह रहे हैं मुझे इस्लाम या मुसलमानों का दुश्मन ना समझें, मैं ना सिर्फ आपका बल्कि सारी दुनिया का दोस्त और गुलाम हूँ, मुझे मायूस ना कीजिएगा। अब आप जरा स्टाइल देखें गांधी का, जैसे होते हैं ना किसी को बेवकूफ बनाना या किसी को क्या कहा जाए, यू कैन थिंक योरसेल्फ। इन हिज रिप्लाई, अब कायद-ए-आज़म ने खत पढ़ा और उसके जवाब में कायद-ए-आज़म क्या कह रहे हैं। कायद-ए-आज़म said in his reply, Quaid-e-Azam proposed the meeting in Bombay in the mid of August. Although the meeting started in September, what was the agenda? It was decided by the Quaid-e-Azam in the meeting that instead of verbal discussion, it is better to exchange letters.
so that the record of the viewpoints of both the parties may be preserved. In this very meeting, Gandhi said clearly that he represented nobody but himself. He said that he was not meeting with Quaid-e-Azam as representative of Congress. Quaid-e-Azam objected to it and stressed that unless talks are not held between the representative of the two nations, he couldn't hope to reach some positive results. राइट। अब कायदे आज़म कहते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हम जो भी बातचीत आपस में करेंगे उसको रिटन फॉर्म में होना चाहिए सो दैट मतलब बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। आप देखिए ना ओरल डिस्कशन अगर होती है एक बंदा कहे कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, दूसरा बंदा फोर्स करे नहीं जी ऐसी बात हुई थी, तो उसका कोई फिर रिजल्ट नहीं निकल सकता। दैट्स वाई कायदे आज़म प्रपोज के रिटन फॉर्म में बातचीत हो। अब गांधी को जाहिर है वो तो फ्रॉड कर रहा था, वो सो कनिंग पर्सन। उसका मकसद ये था कि मैं यहाँ पर बातचीत करके फिर अपनी कौम को जाके कहूँगा जी ये बात हुई है, वो झूठ सच जो भी बोलूँगा अगर मैं रिटन फॉर्म में कर देता हूँ तो फिर मैं मुकर नहीं सकूँगा अपनी बात से। तो अब वो कैसे कहता नहीं जी मैंने रिटन फॉर्म में नहीं करना। उसने इसको इस तरह से कहा कि देखिए कायद-ए-आज़म को कहा कि वो कांग्रेस के नुमाइंदे की हैसियत से मैं आपसे मिलने नहीं आया, बल्कि मैं पर्सनल ज़ाती हैसियत से आपसे मिल रहा हूँ। कायद-ए-आज़म ने इस पर ज़ाहिर एतराज़ किया। उन्होंने कहा हाउ इज़ दिस पॉसिबल, मैं अगर आपसे मिल रहा हूँ तो एज लीडर ऑफ मुस्लिम लीग आई एम टॉकिंग टू यू, और मुझे लीडर ऑफ कांग्रेस ही से बात करनी है, मैं एक शख्स से उसकी इंडिविजुअल हैसियत में नहीं मिलना चाहता। क्योंकि अगर आप एक एज अ पर्सन आएंगे तो फिर लीडरशिप की बात नहीं हो सकती और फिर हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते अपनी पार्टीज की बिहाफ पर। लिहाजा ये बात ही मतलब आप समझ सकते हैं कि एक बंदा बतौर लीडर शरीक हो रहा है और दूसरा बंदा कह रहा है नहीं मैं तो पर्सनल हैसियत में आया हूँ। लिहाजा इस बेस पर कोई खास रिजल्ट फाइंड आउट ना हो सका। द टॉक्स फ्रॉम द point of Pakistan resolution based on the two nation theory. During the talks, Gandhi refused to accept the two nation theory. यानी बात शुरू ही इस बात से हुई। कायद-ए-आज़म ने कहा कि बड़े सगीर में दो कौमें आबाद हैं, गांधी टू नेशंस को मानने को तैयार ही ना हुआ। After having dialogue and correspondence with Quaid-e-Azam, Gandhi said that although he was not supporter of the two-nation theory, अब वो एक और चाल चल रहा है, जरा गौर कीजिए। गांधी एक और चाल चल रहा है, वो कहता है जब Quaid-e-Azam ने टू नेशन की बात की तो वो कहता है although I'm not the supporter of two-nation theory, yet if Muslim League wanted to put Lahore resolution into practical form, this issue should be delayed. First, they should achieve the freedom from the British collectively. Afterwards, Congress and Muslim League may settle the issue of Pakistan mutually. यानी अब वो क्या कहता है कि मैं दो कौमी नजरिए को तो नहीं मानता, लेकिन चलें अगर मुसलमान ये चाहते हैं, उसने कायद-ए-आज़म को कहा अगर मुस्लिम लीग ये चाहती है या आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है तो चलें ठीक है, हम टू नेशन की बेस पर पाकिस्तान रेजोल्यूशन करारदाद पाकिस्तान की बात कर लेंगे, बट पहले आप हमारे साथ मिलके अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करते हैं हम, यानी अंग्रेज़ों को तो बाहर निकाल देते हैं, लेटर अभी आप इस पाकिस्तान के मंसूबे को डिले कर दें, लेटर हम इस इशू को देख लेंगे। अब ये बात तो जाहिर है बड़ी स्ट्रेंज थी। कायद-ए-आज़म यानी बेसिकली आप यूँ समझ लें कि उसने दो कौमी नजरिए को मानने से इनकार कर दिया। सो कायद-ए-आज़म adjusted the style of नहीं, कायद-ए-आज़म ने इस सूरत हाल में he understood the position के how he is behaving. He said the style of Gandhi is nothing but cheating and hypocrisy and cunningness. He emphasized that the British must settle the issue of
for the freedom of India because Congress and Hindu could not be relied upon. यानी कायदे आजम ने गांधी के इस अंदाज को एक धोखा और बकवादी करार दिया। इस बात पर जोर दिया कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले ही पाकिस्तान का मसला अंग्रेज़ों को हल करना चाहिए क्योंकि वो कांग्रेस और गांधी पर किसी सूरत एतबार नहीं कर सकते। Although Jinnah Gandhi talks ended, but the world has seen that Quaid-e-Azam was only not the leader of only Indian Muslims. यानी आप ये देखें, इससे हम ये रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं कि जिन्ना गांधी टॉक्स तो आप समझे एंड हो गई, उसका कोई कमेंट बाकी नहीं रहा, उनका कोई मकसद ना रहा, लेकिन दुनिया को ये अंदाज़ा हो गया कि और मुसलमानों को भी, अंग्रेज़ों को भी ये अंदाज़ा हो गया कि अब मुसलमान एक अलहदा वतन की डिमांड से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे और फिर आने वाले वक्त ने ये साबित भी कर दिया। गांधी की चालाकियाँ मकारियाँ भी वाजी हो गई और कायदे आज़म का पॉइंट ऑफ व्यू भी साबित हो गया। This is the end for today's lecture. आप इसको same as I told many times, read it 5 times, try to write, try to learn its places, its timing, dates, everything. We'll see later. Okay, thanks. Goodbye.